Hello kids, Namaskar. How are you all? I hope you all are fine and safe and started learning. Are you enjoying or not? Yes? Which chapter we had started? Yeah, we have started chapter number 11, Light, Sound and Force. Yes, we have completed the topic light. In that we have learned about shadow. Yes, how shadow forms. What are luminous object and what are non-luminous object? Yes or no? So today we are going to learn about sound and force. आज हम क्या learn करने वाले हैं? About sound and about force. So first of all, let's start with the topic sound. Sound means what? So sound is something that we hear. Sound क्या है? Yes, sound क्या है? It is something that we hear. Sound plays an important role in our everyday lives. See dear kids, अब sound हम किसकी help से सुन सकते हैं? With the help of our ears. अगर ears नहीं होंगे, so we can survive. Yes, we can survive, but it is important to have ears. Without ears we cannot hear the sound. हम सुन पाएंगे क्या? No. And क्या वो चलेगा? There are some peoples, ऐसे बहुत सारे peoples हैं. There are some people, those do not have ears, right? But it is very difficult for them to live without ears, right? So अब हमारे पास तो ears हैं. So we can hear the sound and it is also important in our daily lives. Now here one story is given. Read Mina's story about sound in her life. अब यहाँ पे एक हमें स्टोरी दी है जो साउंड के ऊपर है, right? So let's read the story together. Good. Mina hear the school bus horn go toot toot. She quickly pick her bag and walks along the footpath to the bus. Now Mina is a girl. She hears the school bus horn. बस का हॉर्न होता है ना, उसको वो सुनाई दिया. सो उसने क्या किया? उसका बैग लिया एंड वो स्कूल के बस के पास, बस स्टॉप के पास पहुंच गई. She gets off the bus and enters in the school. Now अब वो स्कूल में पहुंच गए हैं एंड स्कूल से, बस में से उतर के she enters the school gate. As she reaches her classroom, she hears the school bell go tring tring. See, ये आप लोग रिलेट करो अपनी लाइफ में, राइट? आपके स्कूल में आपके साथ भी यही होता है. बस आती है या फिर आपके रिक्शा वाले आते हैं या तो आपके वैन वाले आते हैं. वो भी क्या करते हैं? हमारे घर के बाजू में, घर के सामने या फिर आसपास में रह के हॉर्न बजाते हैं. एंड देन यू कम टू नो दैट यस, वैन हैज केम एंड देन यू क्विकली टेक योर बैग, पुट ऑफ योर शूज एंड यू रन अवे, राइट? जैसे ही आप वैन में बैठते हो, स्कूल में पहुंचते हो, एंड देन यू विल हियर दी स्कूल बेल एंड देन यू गो फॉर दी असेंबली. यस, सो मीना के साथ भी यही हो रहा है. जैसे ही वो बस से उतरी एंड देन शी एंटर्स द स्कूल. यस, क्लासरूम में पहुंचने तक उसको एक स्कूल बेल आवाज सुनाई दी, दैट इज ट्रिंग ट्रिंग. A little later, the teacher enters the class and all the students wish her good morning, madam. At that time, see, ये जो सारे words हैं, tring tring, good morning ma'am, toot toot. Yes, these all are the words which make the sound. Yes, this story is related to us. हमारे स्कूल में भी, हमारे साथ भी यही होता है. The story is related to us.
Sound plays an important part in our life. We open our door on hearing doorbells. Yes, हम अपना दरवाजा कब खोलते हैं? जब डोरबेल बजती है तब, या फिर कोई नॉक करता है तब. Yes? Yes or no? We get happy at hearing the chirping of birds. See, ये सारे जो साउंड है, we like it, right? Chirping of birds की आवाज हमें पसंद है. And shout when we want to call a rickshaw at a distance. And फिर हम shout करते हैं जब हमें रिक्शे वाले की जरूरत होती है तब. Can you think of some sound that are unpleasant? Yes, कोई साउंड unpleasant भी होते हैं. Unpleasant means what? जो बहुत ही ज्यादा आवाज भी हमें पसंद नहीं है, right? A loud and unpleasant sound is called a noise. जो बहुत ही लाउड हो एंड जो सुनने में अच्छा ना लगता हो, अनप्लीजेंट होवे. प्लीजेंट होवे मीन्स क्या आएगा? गुड मॉर्निंग मैम बोलेंगे तो कितना अच्छा लगता है. यस, बेल की आवाज हमें पसंद है. चिरपिंग ऑफ बर्ड्स की आवाज पसंद है. डोर बेल की आवाज हमें पसंद आती है. क्या हमें पसंद आता है जब हम ट्रैफिक में रहते हैं एंड सारी कार, सारे बसेस, सारे रिक्शा एक साथ में हॉर्न बजाएं? डू वी लाइक इट? क्या वो अनप्लीजेंट होगा या प्लीजेंट साउंड होगा? नो, वी डू नॉट लाइक दैट साउंड. हमें वो हॉर्न वाला साउंड पसंद नहीं आएगा. जब सब साथ में साउंड करेंगे तब हमें वो पसंद नहीं आएगा. फिर जब डीजे वाले बहुत जोर से आवाज करते हैं एंड आपका टाइम स्टडी का है, तो क्या आपको तब वो साउंड भी आपको पसंद आएगा? नो. यस, बिकॉज वो अनप्लीजेंट साउंड है आपके लिए. यस, सो द लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड, इट इज कॉल्ड अ नॉइस. उसको हम क्या कहते हैं? नॉइस कहते हैं. आप लोग स्कूल में भी कितना नॉइस करते हो, डू यू नो दैट? फिर मैम आपको कहते हैं डोंट मेक नॉइस. यस, ये जब आप सब साथ में शाउट करते हो ना, तब आपको मैम कहते हैं ना कि डोंट मेक नॉइज, बिकॉज नॉइज इज नॉट गुड फॉर अवर ईयर्स. प्लीजेंट साउंड हम सबको पसंद है. आपको मैम ऐसा कभी कहते हैं कि गुड मॉर्निंग मत बोलो? कभी कहते हैं मैम आपको? नो. बट जब आप सब साथ में आवाज करते हो, राइट, तब आपको मैम क्या कहते हैं? प्लीज डोंट मेक नॉइज, कीप योर माउथ शट. यस, बिकॉज ये सारे प्लीजेंट साउंड हमें पसंद आते हैं एंड जो नॉइज है, जो अनप्लीजेंट साउंड है, लाउड साउंड है, वो हमें पसंद नहीं आते हैं. सो वी शुड नॉट मेक नॉइज एंड इट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर अवर ईयर्स. वी शुड प्रोटेक्ट अवर ईयर्स फ्रॉम नॉइज एंड फॉलो दिस रूल्स. हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं जिससे हम नॉइज से बच सकते हैं एंड हमारे ईयर्स बच सकते हैं. सो व्हाट आर द रूल्स? टॉक सॉफ्टली. हमें कैसे बातें करनी है? सबसे एकदम सॉफ्टली, चिल्ला चिल्ला के नहीं. राइट? टॉक सॉफ्टली, पोलाइटली. यस. लिसन टू म्यूजिक एट लो वॉल्यूम. अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, दैट इज गुड, बट आप कैसे सुनोगे? एट लो वॉल्यूम. वॉल्यूम थोड़ा कम रखकर सुनोगे. प्ले द टेलीविजन एट लो वॉल्यूम. अगर आपको टीवी देखना पसंद है, आप टीवी देख रहे हो, एट दैट टाइम भी आपका जो टीवी का वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा? एकदम लो होगा. एकदम लो भी मत कर देना कि आपको सुनाई ना दे. राइट? इट शुड बी मीडियम एंड इट शुड बी लाइक दैट कि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो. राइट? इट शुड बी लाइक दैट कि अगर आपको टीवी देखना पसंद है, आप एंजॉय कर रहे हो, बट इट नॉट डिस्टर्ब दी अनदर वन. डू नॉट अननेसेसरी ब्लो द हॉर्न. राइट? कोई को ऐसी हैबिट होती है कि एट रोड पे कोई नहीं है, देन ऑल्सो दे ब्लो द हॉर्न. फिर भी हॉर्न बजाते हैं, विच इज अननेसेसरी. राइट?
अगर जरूरत है देन इट इज ओके, बट if there is no vehicle on the road, then do not blow the horn. Understood? So these are the some rules which will help us to protect our ears from noise. We don't like noise, right? हमें noise पसंद नहीं है, हमें pleasant sound पसंद है, right? Now what is Factor? There is no sound on the moon. Sound travels through air. As there is no air on the moon, sound cannot travel on the moon. See, जो sound है वो travel किससे करता है? Through the air. Air की help से travel करता है. Do you know that? moon पे तो air ही नहीं है. So air नहीं है, so क्या sound होगा moon में? No. If air is not there, then sound is also not there on the moon. Okay? So now understood about sound? So let's move to force. What is force? See, first of all, let's see the picture. What is happening in the picture shown here? You can see the two boys, right? A boy is trying to move the box by pulling it, and however his friend is stopping him by pushing the box. You can see in the picture. एक बॉय क्या कर रहा है? उसको मूव करने की कोशिश कर रहा है, बट जो दूसरा बॉय है, उसका फ्रेंड है, वो क्या कर रहा है? उसको पुश करने की कोशिश कर रहा है. Yes? So here one boy is pulling the box and one boy is pushing the box, right? So when we push the object, जब हम ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? मूव होता है, right? But when we pull the object, it comes close to us. Yes? जब हम स्मॉल पुश करेंगे तो ऑब्जेक्ट नजदीक में मूव होगा, बट जब हम एक फुटबॉल ले लो, राइट? अगर आपने फुटबॉल को किक किया, अगर आपने स्मॉल किक किया होगा तो वो आपके नजदीक में मूव होगा, राइट? बट व्हेन यू क्लिक इट हार्डर, इट विल गो फार अवे फ्रॉम यू, राइट? एंड इन दी सुपरमार्केट या फिर आप मॉल में जाते होंगे, सो आपको ट्रॉली को क्या करना पड़ता है? अपने क्लोज में आने के लिए आपको पहले पुल करना पड़ता है. यस और नो? सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज पुश और पुल, राइट? अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो सो वो भी एक फोर्स है. अगर आप उसको पुल कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ फोर्स. व्हाट कैन फोर्स डू? फोर्स क्या करता है? Force can make an object move forward or backward. Yes, forward जब हम उसको push करेंगे तब, and backward जब हम उसको pull करेंगे तब. When you kick a ball, you are applying force on the ball to make it move. When you are kicking the ball, right? When you kick a ball, तब आप क्या करते हो? You are applying a force. When you apply the force, the ball will move. राइट? बॉल क्या होगा? इट विल मूव. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. पहले तो वो ऑब्जेक्ट को मूव करेगा इन दी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, एंड सेकेंड पॉइंट इज इट कैन ऑल्सो स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. स्टॉप भी करेगा अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो. वेन यू कैच अ बॉल मूविंग टूवर्ड्स यू, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टॉपिंग दी object, right? So force can stop a moving object, and force can also move the object in the backward and forward direction. Force can make an object move faster or slower, right? Object को वो fast भी कर सकता है, slow भी कर सकता है. Faster and slower कैसे? See, when you पुश अ टॉय कार. यस, जब आप टॉय कार से खेलते हो
जब आप उसको पुश करते हो तो वो मूव होगा, जब आप उसको ज्यादा पुश करोगे सो इट विल मूव फास्टर. यस, इफ यू अप्लाई अ स्मॉल फोर्स इट विल मूव स्लोअर, राइट. मूव होगा बट इन अ वेरी स्लो डायरेक्शन, स्लो मूवमेंट बताएगा. बट वेन यू पुश इट हार्डर सो इट विल मूव फास्टर एट दैट टाइम. यस, सो कौन से फोर्स कौन से 3 थिंग्स कर सकता है? इट कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, इट कैन मेक द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर एंड स्लोवर, and also it can make the object move in the forward and backward direction. Then force can also make a moving object change direction. Stop कर सकता है, backward forward में करता है, change करता है, but now it's also change the moving object direction. उसकी डायरेक्शन भी चेंज करता है. Like when you hit the ball coming towards you with your bat, you apply force on the ball to change it direction. See, when you hit the ball, जब हम बॉल को हिट करते हैं with the help of our bat, वो क्या होता है? बॉल कहाँ जाती है? अलग ही डायरेक्शन में जाती है ना. So, इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि force can मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डायरेक्शन. एक मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज फोर्स कैन ऑल्सो मेक एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स शेप. चेंज इट्स शेप भी होता है, राइट. डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, शेप भी चेंज हो जाता है. सो हाउ, इसका एग्जाम्पल क्या है चेंज ऑफ शेप में? व्हेन यू स्नीज अ रबर बैंड, जो रबर बैंड होते हैं उसको आप स्नीज करो, मतलब लंबा करोगे तो कितना लंबा हो जाता है वो. यस, यू चेंज इट शेप बाय अप्लाइंग फोर्स. एक स्मॉल रबर बैंड को आप बिग रबर बैंड भी कर सकते हैं. एंड आपको पता है रबर बॉल भी आते हैं. यस, उसको भी आप जब स्नीज करते हो तब उसका शेप चेंज हो जाता है, बिकॉज यू हैव अप्लाइड दी फोर्स, यू हैव अप्लाइड दी पुश एंड पुल. सो नाउ लेट्स रिकैप व्हाट वी लर्न इन दी फोर्स टॉपिक. व्हाट इज फोर्स? अ पुश और पुल, राइट. व्हेन वी पुश an object or when we pull an object, that is called force. And what are the things can force do? It can move an object, object को move करता है both the direction, forward and backward both. It can stop a moving object, एक moving object को वो stop भी करता है. Force can make an object move faster or slower भी करता है. Then फोर्स हेल्प अस टू चेंज द डायरेक्शन. यस, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज करता है. फोर्स कैन ऑल्सो मेक एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स शेप. सो देर आर 5 थिंग्स अ फोर्स कैन डू. मूव एन ऑब्जेक्ट, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूव फास्टर एंड स्लोवर, चेंज द डायरेक्शन, चेंज द शेप. यस, अंडरस्टूड. नाउ come to next topic, force due to friction. Now what is friction? Let's read the paragraph and try to understand how force due to friction happens. When objects rub or slide against each other, a force is created due to friction between the two surfaces. Now what happens जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं या फिर दो ऑब्जेक्ट पे स्लाइड करते हैं, सो उनके बीच में एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, राइट, बिटवीन द टू सरफेसेस, उनके सरफेसेस पे. सी, अर्ली मैन ने क्या किया था? डू यू नो दैट दे रब द 2 स्टोन्स, राइट. 2 स्टोन्स को वो लोग ने रब किया था. इसके हिसाब से क्या हुआ? स्पार्कल्स हुए, राइट. हमें फायर का इन्वेंशन हुआ. यस, सो लाइक दैट वे व्हेन वी रब 2 ऑब्जेक्ट्स अगेंस्ट ईच अदर, हम एक
दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, देयर इज अ फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस बिटवीन द टू सरफेसेस. Force due to friction slows down the motion of an object when it rubs or slides against another object. क्या होता है इसमें? फोर्स स्लो डाउन हो जाता है, राइट, when the two objects are rub and slides against each other, right? Friction act in the opposite direction to that of the motion. Force due to friction depend on the surface in contact, right? किस पे डिपेंड है? In these surfaces. A rough surface will have greater force because उसमें friction, due to friction than the smooth surfaces. Rough surfaces पे friction ज्यादा होगा as compared to the smooth surfaces because it depends on the surfaces. Friction जो है वो किस पे डिपेंड है? Upon the surface. See, rough surface will have greater force. जो rough surface होंगे उसमें force ज्यादा होगा as compared to the smooth surfaces, right? Smooth surfaces में force कम होगा due to friction. Understood? So dear kids, here one activity is given. Let's see that. From this activity, we will understand how force due to friction happens. Right? ये activity आपको homework में करनी है. What you need, आपको क्या क्या जरूरत होगी? Which things you will require? A toy car, a slope followed by a plane, a long carpet, or if mat is there. Now what you will do, see, you will require this type of slope, right? एक slope ऐसा चाहिए, एक कार आपको चाहिए होगी, toy car, and एक carpet चाहिए होगा. If carpet is not there, then आप एक mat भी ले सकते हो, right? अब आप क्या करोगे? You will make a starting point. Yes, starting point लोगे आप. Then you will place the toy car on the start and then you will allow the car to roll off the slope onto the plain floor. Plain floor means क्या? आप यहाँ पे कुछ रखोगे नहीं at that time. जो आपकी टाइल्स जैसी है वैसे ही रखोगे. यहाँ पे कुछ भी होना नहीं चाहिए, राइट? कोई भी क्लोथ या फिर मैट कुछ भी नहीं होना चाहिए. प्लेन फ्लोर होना चाहिए. What you will do? You will start the कार टू रोल ऑफ, राइट? स्टार्ट करके आपको सिर्फ रख देना है. सो अब देन यू विल मार्क द डिस्टेंस कि कितना कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. ओके, देन नेक्स्ट, नाउ यू विल कवर द स्लोप. आपको क्या करना है? यहाँ पे स्लोप पे एंड जो आपका फ्लोर है, पहले यहाँ पे कुछ रखना नहीं था, बट आपको अब यहाँ पे क्या रखनी है? मैट या फिर थिक कारपेट कुछ तो रखना होगा. एंड देन यू विल अगेन जो कार है उसको स्टार्ट करोगे एंड उसको अलाउ करोगे टू रोल. देन यू विल मार्क द डिस्टेंस. अब आपको क्या पता चलेगा इससे? दोनों में कुछ डिफरेंस तो होगा ना, बिकॉज जो हमने पहले किया था वो कैसा सरफेस था? स्मूथ सरफेस था, राइट? बट जब हमने सेकेंड टाइम जो कारपेट के साथ किया या फिर जो हम आप मैट के साथ भी कर सकते हैं. सो व्हाट वी विल फाइंड दैट द टॉय कार ट्रेवल अ ग्रेट डिस्टेंस व्हेन द फ्लोर इज नॉट कवर्ड विद द कारपेट. जब ये स्लोप पे फ्लोर पे कारपेट नहीं था तब टॉय कार ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया. यस, बिकॉज वो स्मूथ था. Yes or no? The floor which is without the carpet is smooth and therefore there is a less friction. But जो rough surface होते हैं उसमें बहुत ज्यादा force लगता है. There is a very great force due to friction
as compared to the smooth surface. You have to perform this activity at your home and you have to share the pics of that. Understood? Now the last topic is uses of friction. See, there are many uses of friction. Yes, because friction prevents slipping or sliding of things. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो सारी चीजें गिरती रहती. ये सुनो, क्या हम उसको होल्ड करके रख सकते थे क्या कोई भी चीजें को? नहीं. यस, पुल करते तो कहां पे चली जाती, पुश करते तो भी हैंड से निकल जाती, राइट? बट फ्रिक्शन हेल्प अस टू प्रिवेंट द थिंग्स फ्रॉम स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग. It helps us in many ways. We are able to walk due to friction between the soles of shoes and ground. हम वॉक कर सकते हैं बिकॉज हमारे शूज एंड जो ग्राउंड है उसके बीच में भी एक फ्रिक्शन है, राइट? वी आर एबल टू होल्ड द पेंसिल ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द पेंसिल एंड द हैंड. यस, नहीं तो ये सारी चीजें क्या हो जाती, स्लिप होती, स्लाइड्स होती, right? But because of friction we are able to hold these things, we are able to walk on the ground, or else it will be slipping or sliding. Understood this much? Do you understand uses of friction? Okay. So dear kids, here we have completed our today's session. We have learned about sound, force, friction, yes, and also uses of friction. Yes, समझ में आ गया आपको uses of friction? Good. So dear kids, अब यहाँ पे हमारा chapter भी finish हो गया है, right? Yes, we are going to recap this chapter tomorrow. Tomorrow मैं आपको ये पूरा chapter एक बार फिर से समझाऊंगी. हम माइंड मैपिंग भी कर लेंगे सो दैट आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, राइट? सो अवर टुडेज CW इज कंप्लीटेड. योर टुडेज होमवर्क इज टू राइट दिस फिलिंग द ब्लैंक्स विच इज ऑन पेज नंबर 118. See, this filling the blanks you have to complete which is on page number 118 in your textbook itself. Right? And also this false statements. Here there are small statements are given. You have to change it in the correct statement. This also you are going to write in your homework. And also you all are going to do the activity. You all are going to share the picture of this. Yes. I hope you all will enjoy. And you all will do this activity. See, ये एक्टिविटी करना दोनों बहुत जरूरी है. Yes, अगर हम स्कूल में होते तो मैं आपको शो करती सब कुछ, बट नाउ वी आर एट होम, नो वरी. आप ये होमवर्क में करोगे. Yes, both the एक्टिविटीज के पिक्स आप मुझे शेयर करना. Yes, good. Tomorrow we will recap this chapter. And also we will complete section 1, right? Till that, complete your homework and enjoy learning. Okay? So bye kids, take care.